میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شب بھر ہوئی تقریبات، درگاہ حضرت بل میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شب خوانی میں لیا حصہ۔ سرحد پر تناؤ بدستور جاری، آر پار گولہ باری سے مرنے والوں کی تعداد پہنچی 8، سرحد کے نزدیک رہنے والے نقل مکانی پر مجبور۔ اور بھاجپا پی ڈی پی گٹھ جوڑ آخری موڑ پر، مفتی مودی ملاقات کے بعد سرکار کا باضابطہ ہوگا اعلان۔ آداب ناظرین، اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ابھی تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں میری لال ہانجوری۔ سب سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ریاست بھر میں روح پرور اور بابرکت تقاریب نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں رات بھر شب خوانی کی تقریبات آراستہ ہوئی، جبکہ سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں سردی کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے رات بھر نعت خوانی، توبہ استغفار، درود و اذکار کی روح پرور محفلوں میں دعائیں مانگی اور موئی مقدس کے دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے درگاہ شریف حضرت بل سمیت شہر و گاؤں کی مسجدوں، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور دینی درسگاہوں میں رات بھر شب خوانی کی گئی، جس کے دوران ہزاروں عقیدت مندوں نے مولود خوانی، نعت خوانی اور درود و اذکار کی خصوصی مجالس میں شرکت کی۔ اگر سامبا اور کٹھوا اضلاع میں بین الاقوامی سرحد پر بھارت پاک فوجوں کے درمیان گھماسان جاری ہے، جس دوران 13 بھارتی چوکیوں اور گاؤں رینجرز کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ اس کشیدگی میں ایک خاتون جاں بحق اور 9 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ بی ایس ایف کے جوابی کارروائی میں سرحد کے اس پار ایک 13 سالہ بچی ہلاک، جبکہ 8 سالہ مرسلین بھی زخمی ہوا۔ سرحدی گاؤں سے ایک بار پھر بڑے پیمانے پر نقل و مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس دوران کرنا کے بجلدار سیکٹر میں پاکستان کی جانب سے راکٹ فائرنگ کے بعد آگ لگنے سے 2 فوجی اہلکار ہلاک اور دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ بہت سارے گاؤں کے ساتھ ساتھ والے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ تقریباً خالی ہو چکے ہیں۔ نہیں، بہت سارے گاؤں ہیں، بہت سارے گاؤں خالی ہو چکے ہیں، اور ہمارا گاؤں تو بالکل بارڈر پہ ہے، اور اس کے پیچھے سے ڈی سی بی لائن ہے، جہاں سے ہمارا فائر پاکستان کے لیے جاتا ہے، تو اور ہم تو بالکل دونوں کے فائر کے بیچ میں رہ رہے ہیں، اپنا فائر بھی ہے، ان کا بھی ہے، تو ہمیں تو کراس فائر میں مرنے کا بھی ڈر ہے، اس لیے ہمارا اس گاؤں میں رکنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اسی دوران کٹھوا اور سامبا کی انتظامیہ پوری طرح سے متحرک ہو چکی ہے اور افسران نے مختلف علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے پولیس کی خصوصی خدمات لیتے ہوئے محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے لوگوں کے لیے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کیا ہے، تاہم سرحد کے نزدیک رہ رہے لوگوں کو خاص ہدایات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، اس میں سامبا میں پرٹیکولر بینگلاڑ میں، رگال میں اور گگوال ایریا میں، چلیاری میں، ماوا میں اور اس طرح کے جو گاؤں ہیں ان میں فائرنگ ہوئی ہے، اور رام گڑھ سیکٹر میں بھی فائرنگ ہوئی ہے، ملوچک میں، کمور میں، اور ہم پوری استھتی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں پولیس ایڈمنسٹریشن کی اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بھی لوگوں کو اسسٹنس ہے وہ دی جا رہی ہے، اور لوگوں کو سیفر جگہ پہ لایا گیا بھی ہے، اور ضرورت ہوگی جہاں بھی آوشکتا ہوگی لوگوں کو سیفر جگہ میں لانے کے لیے ان کو کیمپس میں رکھنے کی جو پربند ہے وہ کیا گیا ہے۔
सरहदों पर पुरअमन अमान को बेहतर ताल्लुकात से मशरूत करते हुए वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और भारत हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां है। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए सरहदों पर कशीदगी के हवाले से रद्द अमल जाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा कि उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है और भारत अपने हमसाये ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहदों पर अमन व अमान से बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद की जा सकती है। ताहम वज़ीर दाखिला ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान की जानिब से मुतवातिर बुनियादों पर सरहदों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही है। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतर रिश्ते हों। और आपने देखा कि जिस समय यहाँ शपथ ग्रहण समारोह था उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और उनके साथ हाथ मिलाया था। हाथ मिलाकर हम यह संदेश ये देना चाहते थे कि हम केवल आपसे हाथ ही नहीं मिलाना चाहते बल्कि पाकिस्तान के साथ हम दिल मिलाना चाहते हैं। लेकिन यह बात हमारी समझ के परे है कि बार बार इसके बावजूद जबकि हम अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती के लिए, क्यों सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है और हर बार पाकिस्तान को मात खानी पड़ती है। बातचीत के दरवाजे मैंने हमारा कहना है। इधर रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान जारी बातचीत में मजीद पेशरफ्त के बतौर दोनों जमातों ने कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम तश्कील देने के लिए अपनी अपनी टीमें तश्कील देने का फैसला कर लिया है। टीमों के दरमियान मशावरत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद के दरमियान बराह रास्त बातचीत होगी। ज़राए से मालूम हुआ कि इस मकसद की खातिर तमाम जरूरी लवाज़मात पूरे कर लिए गए हैं और अगले हफ्ते दोनों पार्टियों के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत का आगाज होने वाला है। ज़राए का कहना है कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव अगले हफ्ते श्रीनगर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। जबकि दोनों पार्टियों की जानिब से जो टीमें बाहमी बातचीत करेंगे उनमें तय पाने वाले उमरात पर बाद में मोदी और मुफ्ती के दरमियान बराह रास्त बातचीत होगी, जिसके बाद हुकूमत साजी के अमल को आखिरी शक्ल दी जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने के लिए लोगों में काफी बेचैनी पाई जा रही है और जहां पिछले 6 महीने से पहले सैलाब और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रियासत में तमीर और तरक्की पर जहां रोक सी लगी थी, वहीं सरकार न बनने से अब आम लोग भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और लोगों का मानना है कि जितनी जल्दी हो सके रियासत की सरकार बन जाए। तो गवर्नमेंट अभी बन नहीं पा रही है, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश है। काफ़ी जो डेवलपमेंटल वर्क है वो काम रुके हुए हैं। रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस था वो कम्प्लीटली अभी रुका हुआ है। लोगों में काफ़ी परेशानियां हैं। अभी विंटर चल रहा है, विंटर में भी लोगों का जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। जल्द से जल्द अगर ये गवर्नमेंट बन जाए तो लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसकी वजह से जो ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो काम सारे रुके हुए हैं। हुकूमत जब तक बन जाएगी तब तक लोगों को ये परेशानियां कंटिन्यू रहेंगी। अभी जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है दैट्स इन फोर्स आल्सो, उसकी वजह से भी लोगों के काम रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई भी गवर्नमेंट जो है बन जाए ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। तो हमने जो ये वो डाले हैं वो इसलिए डाले हैं कि हमें अच्छी हुकूमत मिले। कोई ये हुकूमत का बनने से इंसाफ होता है, छोटे बड़े को ये काम बनता है। अब जब कि गवर्नमेंट नहीं बनेगी परेशान होंगे सब लोग, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक जो गवर्नमेंट नहीं बन पाई इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली अभी सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है वो है अभी रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स। अभी उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट अभी बैठी है, अभी पूरा जो मशीनरी है वो इसी पे ध्यान दे रही है कि गवर्नमेंट कौन बनाए कब बनाए, और इसी सिलसिले में जो फ्लड विक्टिम्स है उनको वो पूरी रिहेबिलिटेशन नहीं मिल रही। दूसरा इसमें ये नुकसान है कि अभी जो गवर्नमेंट नहीं बन रही है तो बहुत से काम जो है डेवलपमेंटल वर्क्स है या चाहे हम जो ऑफिशियल वर्क है वो भी अभी ठप है। तो डेफिनेटली जल्दी गवर्नमेंट बननी चाहिए ताकि ये जो सारे काम है ये पूरे हो सके।
देखिए जो ये डेडलॉक है उसकी वजह से लोगों को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे ये साल जो 2014 का था, मतलब इसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर हम देखें मई में यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, उसके बाद मतलब सितंबर में यहाँ पे फ्लड आया, उसके बाद ही असेंबली मतलब इंतखाबात यहाँ पे कराए गए, और अब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है तो काफ़ी मतलब डेडलॉक जो हुआ है, गवर्नमेंट बन नहीं पा रही है। PDP सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर आई है, जम्मू में BJP ने स्वीप किया है, तो मिल नहीं पा रही है आइडियोलॉजी। PDP की एक आइडियोलॉजी है, BJP की दूसरी आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर लोग यहाँ पे चाहते हैं, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है या वो लोग जो काफ़ी मतलब मुश्किलात जिनको हुई मतलब सैलाब की वजह से, जो रिहेबिलिटेशन के मुंतज़िर है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे आए, गवर्नमेंट मतलब फार्म हो जाए ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। बिजनेस कम्युनिटी की भी डिमांड है, उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है, वो भी मतलब सेंट्रल पैकेज के इंतज़ार में। जब गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है स्टेट में तो पैकेज कहाँ से आएगी, और रिहेबिलिटेट भी लोगों को नहीं किया जा सकता। और इस वक्त विंटर भी है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे मतलब टेंट्स में मतलब अपनी रातें गुजार रहे हैं। तो मुझे लगता है मतलब जो भी मतलब जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब सीट्स हासिल की है, उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कि वो किसी नतीजे पे आए, वो क्लियर करे कि क्या उनको मतलब गवर्नमेंट बनानी है कि नहीं बनानी है। उसके अलावा भी ऑप्शन दूसरे भी है ताकि लोग जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना उनको न करना पड़े। ये है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ का सेक्शन देखें, वो थोड़ा खुशी है इसमें, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर गवर्नर्स रूल, दे आर एक्सपेक्टिंग गवर्नर्स रूल इन स्टेट, तो उसमें दे आर एक्सपेक्टिंग देयर ओन थिंग्स, कि उनको लगता है कि दे वोंट बी, दे डोंट हैव टू अबाइड विद द रूल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर ब्यूरोक्रेट्स, तो दे विल हैव टू गो बाय देयर ऑफिसर्स गाइडेंस एंड ऑर्डर्स। इधर वादी में जहां राशन की किल्लत और इसकी तकसीमकारी पर आए रोज लोग एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, वहीं महकमा उमूर सार्मिन के असिस्टेंट डायरेक्टर स्टोर्स ने JK चैनल के साथ बात करते हुए बताया कि हाल सैलाब के बाद सरकार ने फैसला कर लिया कि राशन की तकसीमकारी मकामी महल्ला कमेटियों की राय के मुताबिक तकसीम की जाएगी, और इस हवाले से कहीं लोगों को 30 किलो तो कहीं 25 किलो के हिसाब से राशन फराहम किया जा रहा है। जबकि अवाम की तरफ से मुख्तलिफ शिकायत के बाद महकमे ने इस ज़िम्न में कार्रवाई भी शुरू की है। जहाँ तक ये कहने का ताल्लुक है कि 30 कहीं पे दे रहे हैं, 35 कहीं पे दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट की मुकर्रर स्केल है फूड ग्रेन्स के बारे में, वो ये है कि APL और BPL के APL में हमारा 30 kgs राइस मिलता है और उसके साथ 5 किलो आटा हम दे देते हैं। इसी तरह BPL और AY कैटेगरी में खाली 35 किलो का राइस जो है वो दिया जाता है। तो वही स्केल हमारी तरफ से मुकर्रर है, सरकार की तरफ से मुकर्रर है, और वही लोगों को दी जाती है। और जो आपने बताया कि कहीं पे शिकायत इस तरह आती है कि स्केल को डाउन करा गया है, जहां तक हमारे जो सरकारी राशन डिपो पे हमारे स्टोर कीपर हजरात हैं, उनको जो है मुकम्मल हिदायत दी गई है कि वो 30 से नीचे APL कैटेगरी में और 35 किलोग्राम का राइस जो है BPL और AY कैटेगरी में, उससे कम बिल्कुल भी ना दें। लेकिन ऐसा कहीं कहीं पे देखा गया है कि कहीं पे हमारे जो लोग हजरात जो हैं खुद वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन करवा के वहाँ पे स्केल्स को डाउन कर रहे हैं। हम इसमें हमारी टीमें जा रही हैं, वो इसका बाज़ाब्ता इसका ले रहे हैं। दे आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट एंड एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट दोज पीपल जो इसमें स्केल डाउन कर रहे हैं। इधर वादी में जहां लोग गैस की किल्लत और होम डिलीवरी के मामले पर अक्सर सरकार और महकमा उमूर सार्फिन के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते रहते हैं, वहीं फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सादिक अहमद ने JK चैनल के साथ बात करते हुए बताया कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को महकमा की तरफ से हिदायत दिए गए हैं कि वो 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर गैस की होम डिलीवरी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की शिकायत भी मौसूल हुई है, ताहम ऐसे डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विंटर में नहीं होने दी, और आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक गैस की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है। सैलाब की वजह से कुछ हद तक ये जो होम डिलीवरी जो है पूरी कुछ हद तक ये इफेक्ट हो गई थी, लेकिन उसके बगैर कोई चारा नहीं था। हमारी पॉइंट डिलीवरी के बगैर उन दिनों कोई चारा नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तक मतलब जस्ट कम बैक टू द रेल्स, तो हमने कोशिश की है। इंशाल्लाह अभी आज की डेट में मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि होम डिलीवरी हमने इंश्योर कराई है 100% एटलीस्ट विद इन द पेरिफेरीज ऑफ 15 किलोमीटर ऑफ द रेडियस। तो जहाँ तक हाँ कुछ हो सकता है कहीं कहीं पे नहीं हो रही हो, उसके खिलाफ जो भी डीलर ऐसा पॉइंट डिलीवरी करता है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं।
जिला बारामूला में जिला तरक्याती कमिश्नर ने जिला और पुलिस अफसरान की मीटिंग तलब की, जिस दौरान 26 जनवरी के हवाले से हो रहे इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने अफसरान पर जोर दिया कि वो 26 जनवरी की तकरीबात को अहसन और रंगीन बनाने के लिए तमाम तर इकदाम उठाएं। जो स्मूथ कंडक्ट के लिए सारे अरेंजमेंट्स को की वजह से ये होता था कि 26 को आप मॉर्निंग में बिकॉज ऑफ द हालात एंड वो नहीं। मेंबर असेंबली कुलगांव मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जिला अफसरान की एक मीटिंग तलब की, जिस दौरान उन्होंने जिला अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए तनदेही से काम करे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तारिगामी ने कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेना न सिर्फ इख्तियार में आना होता है, बल्कि कामयाब होकर लोगों की उमंगों पर खरा उतरना सबसे बड़ी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी पर बराह रास्त वार करते हुए तारिगामी ने कहा कि रियासत में फिरका परस्त जमातों की हुकूमत साजी में कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिन्होंने आज मुल्क में पूरे मुल्क में कई दीवारें खड़ा कर ली हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नफरत फैला दी है। और हम ये चाहेंगे आज कि जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बने जो सेकुलर सरकार हो, जिसमें बीजेपी ना हो, जिसमें नफरत की गुंजाइश ना हो, जिसमें फूट की गुंजाइश ना हो। ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब राजपुरा से हारे हुए उम्मीदवार गुलाम मोहिद्दीन मीर ने पार्टी कन्वेंशन के दौरान राजपुरा के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि जिन लोगों ने उनके हक में वोट दिया है वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती अवाम खासकर सूबा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अवाम को देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी यहाँ की अवाम की उमंगों के मुताबिक काम कर रही है। वोटरों को जिन्होंने मुझे वोट डाले थे, मैंने 14,000 करीबन वोट लिए हैं, उनको यहाँ बुलाया था उनका शुक्रिया करने के लिए। मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाले हैं, और जिन्होंने मुझे वोट डाले हैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। और इंशाल्लाह मैंने उनको कहा है कि मैं एक सियासी खानदान से वाबस्ता हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा उनके लिए। जहाँ भी उनकी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, इस वक्त मैंने उनको ये भी कहा है कि उनको देखना चाहिए, सारे लोगों को देखना चाहिए, उस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, खासकर हमारे सूबा जो कश्मीर है वहाँ के यहाँ के लोगों को भी देखना चाहिए कि इस वक्त जो सियासी पस मंज़र चल रहा है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में, उनको जांच लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी क्या है, किसके दिल में क्या है, कैसे इस वक्त सियासी जो लोग हैं कैसे वो इस वक्त जो खेल खेल रहे हैं, उनको भी जांच लेना चाहिए कि लोगों का हमदर्द असली कौन है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन की तरफ से दारुल खैर मीरवाइज मंजिल हजरत बल में बासादत हजरत पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक तबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त तबी जांच के अलावा अद्वियात भी तकसीम की गई। इलाके के लोगों ने इस मेडिकल कैंप का फायदा भी उठाया। वादी में जहां आजकल हर जगह से महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं सोपोर में भी महकमा बिजली को लोग तरसने लगे हैं। लोगों के मुताबिक अगरचे यहां बिजली की तरसीली लाइनें खंभों से जुड़ी हुई है, ताहम बिजली की झलक देखने के लिए लोग तरसते ही रहते हैं, जबकि बिजली की आंख मचोली को लेकर लोग परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं। हालात प्रत कुछ अंदाज नजर अंदाज कर बिजली सिलसिल में सोपोरस में बिजली और अत सिलसिल में ये सात बिजली 5 मिनट तो गसान पे वापस। और अत सिलसिल में सोरे सोपोर अवाम प्रत कुछ जाए सोपोर प्रत कुछ एरिया में टोटल अंधेरा आसान और टोटल बनान कि चीज टोटल बना रात किस बना पकुन कहें चीज पकान कहें सुबह पे शाम तक बिजली सिर्फ मतलब फीस फीसन कमी गसान कहें अलबत् बिजली सिलसिल बिजली बिल्कुल टोटल अंधेरा। और अत सिलसिले में तमाम सोपुर अवाम और तमाम सोपुर लूग अत सिलसिले में ज़बरदस्त मतलब अत पे इज़हार अफसोस करान।
बानिहाल के जंगलात में कंपार्टमेंट नंबर 42 में आग लगने से सरसब्ज जंगलात और मेडिसिनल प्लांट्स को काफी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान मकामी लोगों और महकमा के एहलकारों ने अगरचे जंगल में लगे आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम आग इस कदर भयानक थी कि उस पर काबू पाने में काफी वक्त लगा। ताहम मुतलका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का मानना है कि उन्होंने इत्तला मिलने के बाद सिर्फ 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। जम्मू में एसआरटीसी मुलाजमी ने अपनी मांगों को लेकर मुजाहरा करते हुए सरकार से मुतालबा किया कि उनकी मांगों को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में लैतुलैल से काम कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहिए टाइम टू टाइम मरने चाहिए, जैसे साहब के पहले जब बाद में किसी ने कोई अधिकार दिलवाए। इसी के साथ उर्दू खबरनामे का ये शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान मीरी लाल हांजुरी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।